we will start with the Makeup Breakthrough webinar. And in Makeup Breakthrough webinar, we are going to talk about one step. Just one second. Okay, thank you everyone. So everybody can listen me. So today is our Makeup Breakthrough webinar where we are going to talk about makeup and one step to learn makeup artistry effectively. Then we will talk about 3 common mistakes that stop us from being a makeup artist, and we will also talk about 3 secrets to achieve 10 lakh in 1 year using makeup artistry. And we will also talk about 3 steps to achieve your goal in 1 year. Now, which topic you want me to take next? So you can think about it because we are working on the various topics. So you don't have to type right now. In the end of the session or on the WhatsApp, you can share, and we will be working on those topics and we will be taking those topics. So moving ahead, as everybody knows, our mission is to make you masters of makeup. And the reason behind this is very simple, because there is a lack of trained and skilled professional makeup artists. So there are certified makeup artists already available, but there is a lack of skilled makeup artists. Now, when I say lack of skilled makeup artists, it doesn't mean that they don't know makeup. Most of them know makeup, but they don't know many other aspects of makeup, which are necessary to become a master of makeup. And that is whole our goal. And that is why, and this makeup artistry is something which can earn you name, fame, money, and respect in all areas of your life. I'm Dr. Munish Sharma. I'm an MBBS diploma in skin aesthetics and CDESCO, and currently the managing director of National Skin Institute, where we create masters of makeup, hairstyle, spa, and cosmetology. So please type in which part of India you are in, and if you are from other country, please type your country name. So please type your city name, country name, wherever you are from. Thank you, everyone. Let's take it little ahead. And now this, how this idea of makeup, because most of people might be thinking कि I'm a doctor और डॉक्टर के साथ मैं एक मेकअप के फील्ड में क्या कर रहा हूँ. तो बेसिकली I'm a स्किन डॉक्टर, स्किन एंड हेयर डॉक्टर, और जो मेकअप होता है वो स्किन के ऊपर होता है. बट दैट वाज नॉट द रीजन आई गॉट इनटू द मेकअप. वंस आई सॉ अ पेशेंट जिसको मेकअप से कुछ एलर्जी हो गया था, और जब मैंने उनको बुलाया तो साथ में मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाना पड़ा. और जब इंग्रेडिएंट्स को चेक किया गया, उसके एप्लीकेशंस को चेक किया गया, देन आई गॉट टू नो कि वो एलर्जी मेकअप की वजह से हुई है. एंड इट वाज नो वंस फॉल्ट, दैट वाज बेसिकली अ प्रोडक्ट फॉल्ट. So right product selection was not done at that point of time, and that is how I got into the makeup. And I realized ki that person has done the makeup course for 3 or 6 months, and she was charging around 50,000 rupees for that bridal makeup. And that idea got stuck me ki, wow, there is a lot of money. And as a doctor, I was only earning, let's say, 1,000 rupees per patient. So that is how a doctor earn, क्योंकि कंसल्टेशन फीस से वो लोग काम करते हैं. पर मेकअप आर्टिस्ट में इतना ज्यादा पैसा था, और वो भी इतने कम टाइम में करियर के ऊपर काम करके. और दूसरा जो मेरा रीजन निकल कर आया, तो वो ये था कि एज अ डॉक्टर आई कैन ओनली सी 10 पेशेंट्स अ डे, max to max maybe 20 or 30, not more than that. But with this makeup industry where there are a lot of people who want to achieve something in their life, so now currently I'm reaching 100, 200, 300 people almost daily. So every day I'm communicating with so many people, and this has been a non-breakable journey since then. Now, one step to learn makeup artistry very effectively is that you should know that why you want to learn makeup. And this is very, very important. The reason has to be really very, very clear why you need to learn makeup. And when we talk about, I usually, as I said, I usually talk to hundreds of people on everyday basis. तो लेवल 1 के जो आंसर हमें मिलते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि लोग बोलते हैं यार मैंने हॉबी के लिए सीखा, मैंने तो पैशन के लिए सीखा. लेकिन जो लोग हॉबी के लिए बोलते हैं, तो आपको ये रियलाइज होना जरूरी है कि जब हॉबी की बात आती है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर होनी चाहिए, तो ही आपको हॉबी के लिए टाइम मिलेगा. और आप कुछ ऐसे टाइप के इंसान होने चाहिए जहां पर आपकी नीड्स मिनिमम है एंड यू आर हैप्पी विद नो इनकम. तो ये डेफिनेटली एक प्री रिक्विजिट है हॉबी को फुलफिल करने के लिए. और कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेरा पैशन है, लेकिन अभी पैशन को फॉलो करने के लिए भी आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि आई विल डू इट व्हाट एवर इट टेक्स.
तो डेफिनेटली आपका अगर ये माइंडसेट नहीं है तो आप इसको पैशन नहीं बोल सकते हैं। तो पैशन का मतलब ये होता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करियर में जाना है, मतलब जाना है। उसके लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या नहीं है, डजंट मैटर। क्योंकि अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है कि आई विल डू इट व्हाटएवर इट टेक्स, देन यू विल श्योरली अचीव योर गोल। नाउ लेवल 2 के जो आंसर्स आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आई वांट टू बिल्ड माय करियर, आई वांट टू रीगेन माय सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई वांट टू अर्न मनी। नाउ व्हेन समवन सेज कि आई वांट टू बिल्ड माय करियर, तो करियर को बनाने के लिए आपको एक माइंडसेट होना जरूरी है, ताकि आपके पास टाइम होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और एफर्ट डालने की ताकत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जहां पे आप ओके हैं अगर आपकी छोटी शुरुआत भी होती है, और स्लोली स्लोली आपको अपने करियर को एक्सिलरेट करना है। तो दैट इज द क्लियर कट डेफिनेशन कि आपको अपने करियर को बिल्डअप कैसे करना है। और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रीगेन करना चाहते हैं, आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल लिटिल लेटर अबाउट दिस। तो जिसमें क्या आता है कि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट का अगर चैलेंज कहीं पे आ रहा है, मोस्टली इट हैपेंस विद हाउसवाइफ जिन्होंने अपने करियर को सेक्रीफाइस कर दिया होता है फैमिली के लिए, और जब फैमिली में भी अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, देन दे स्टार्ट फीलिंग कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने अपना करियर भी छोड़ दिया फैमिली के लिए और नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनफ रिस्पेक्ट। तो इसमें क्या है कि आप एक एक्शन टेकर पर्सन होने चाहिए, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपका बहुत ज्यादा एक्शन टेकिंग बिहेवियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो आता है कि आई वांट टू अर्न मनी। नाउ सम पीपल से कि आई वांट टू अर्न एक्स अमाउंट ऑफ मनी, तो उनको ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कितने पैसे उनको बनाने हैं। अभी आप एनालिसिस करिए कि आई वांट टू मेक मनी एंड अनदर स्टेटमेंट इज आई वांट टू अर्न 5 लाख इन 1 ईयर और आई वांट टू मेक 10 लाख इन 1 ईयर। तो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल कि द सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी मच एक्यूरेट एंड इट मेक्स मोर सेंस टू एवरीवन। तो अभी बात करते हैं कि जब पैसे बनाने की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये स्टेटमेंट भी हमारा वीक पड़ जाता है कि मुझे 5 लाख बनाने हैं, 10 लाख बनाने हैं, 20 लाख बनाने हैं एक साल में। क्यों वीक पड़ जाता है? क्योंकि आप उतना एक्शन नहीं लोगे जब तक आप इसको अपने इमोशनल पार्ट के साथ कनेक्ट नहीं करते हो। नाउ इमोशनल पार्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं 10 लाख पैसे रुपए बनाना चाहती हूँ एक साल में, ताकि मैं अपनी टेक केयर इंडिपेंडेंटली कर सकूं। नाउ इट इज मेकिंग सम सेंस। Now, some people will say कि I want to make 10 lakh rupees so that I can lead a respectable life for myself. I want to make 10 lakh rupees so that I can regain my respect as a housewife. I had left my career after marriage and I need to rebreathe, and for that I need 10 lakh rupees. This is the sensible statements. I want to provide good education and care to my kids, and that is why I want to make 10 lakh rupees. So if I'm making some sense and if you are learning something, please type learning. Thank you everyone. So please keep typing. I am going to ask you more questions. So moving ahead next. Everybody learning something? Okay. So how many of you realize कि जितना आपका why strong है कि मैं क्यों करना चाहता हूं या चाहती हूं, उतने ही ज्यादा आपके एक्शन ज्यादा पावरफुल होंगे। If you agree, please type in yes. Please type in yes if you agree. अब आप में से कितने सारे लोगों को ये रियलाइज हुआ होगा कि मेकअप आर्टिस्ट्री को अगर हम एक व्हीकल की तरह ट्रीट करें कि जो हमारे सपने को पूरा करेगा, तो कितना अच्छा ये आइडिया होगा। अगर मेकअप को हम बोलते हैं कि भाई ये ड्राइवर है मेकअप का, और सॉरी गाड़ी का ड्राइवर है मेकअप, और उसके बाद मार्केटिंग है जो कि फ्यूल है व्हीकल का, और इसके अलावा सेल जो है वो टायर है व्हीकल के जो हमें आगे लेकर जाएंगे। तो इस पूरी मेकअप आर्टिस्ट्री को आप एक व्हीकल की तरह देखना शुरू करें। जब आप इसको व्हीकल की तरह देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेकअप आर्टिस्ट बनना एक अलग बात है, उस गाड़ी में ड्राइवर आपने मेकअप आर्टिस्ट्री को बना दिया है, उसके बाद उसके अंदर मार्केटिंग का काम करना जरूरी है ताकि आपको कंसिस्टेंटली एक
लीड्स मिलते चले जाएं और उसके साथ साथ सेल्स एज अ टायर क्रिएट करें ताकि हमको आगे बढ़ने में काम आए. इफ दिस इज मेकिंग सम सेंस टू यू, प्लीज टाइप सेंस. प्लीज टाइप सेंस इफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. इसको मैंने एक गाड़ी के साथ कंपेयर किया है, मेकअप आर्टिस्ट्री को. तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत हैं, आप भी लोगों को मेकअप, बिकॉज उनके व्हीकल में कुछ खराबियां. मेकअप आर्टिस्ट वो अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है उनको उनकी गाड़ी को फ्यूल नहीं मिल रहा है मार्केटिंग का, उनकी गाड़ी के टायर अच्छे नहीं है जो सेल्समैन का काम करते हैं. प्लीज टाइप इन यस इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू. थैंक यू एवरीवन. अब बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से. तो यहाँ पे मैंने 3 बिजनेस मॉडल का एनालिसिस किया है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट में बहुत सारे फील्ड हैं, बट फिर भी कुछ बिजनेस मॉडल का मैंने एनालिसिस किया है. तो लेट्स पहले एक बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करते हैं. इंडिया में अराउंड 1 करोड़ शादियां हर साल होती हैं, और ये कोई मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये बीबीसी चैनल का रिपोर्ट है, और जहाँ पे मैंने इस चीज को गूगल से निकाला है. और इस इंडस्ट्री में पिछले बहुत सारे सालों में 25 to 30% का ग्रोथ एनुअली हो रहा है, और इसने कभी भी स्लो डाउन नहीं देखा है. और जो अभी का टाइम चल रहा है उसमें चलो ये तो ऐसी एक चीज है जहां पे कोरोना की वजह से सारी ही इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हैं, बट ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा. सूनर और लेटर चीजें नॉर्मल पे आ ही जाएंगी. तो अब हाउ मेनी मैरिजेस हैपन इन मुंबई, वो हमारा एक क्वेश्चन होता है. तो आपके हिसाब से कितनी शादियां मुंबई में होती हैं? तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन. ये आपको गूगल पे मिल जाएगा कि कितनी शादियां आपको यूजुअली मुंबई में होती हैं. तो मुंबई में अराउंड 30,000 शादियां होती हैं, और 30,000 शादियां हर साल होती हैं मुंबई में. और अब बात करते हैं कि अगर 30,000 शादियां हैं, अब आपको एक आइडिया मिल गया है कि मुंबई में 30,000 शादियां होती हैं. मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूं या बनने वाली हूं, तो इसमें से कितनी शादियां आप करवाना चाहते हैं, यानी कि कितनी शादियों का मेकअप आप करवाना चाहते हैं. आई एम श्योर एवरीवन हैज अ पेन एंड पेपर. तो आप एक अपना नंबर लिखिए. आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक नंबर लिखिए आप अपने पास कि कितनी शादियां 30,000 शादियों में से आपके पास आनी चाहिए. तो यू गॉट टू राइट दैट नंबर ऑन योर नोटबुक. और उसके बाद बात करेंगे कि एक शादी में एवरेज अमाउंट कितना मिलता है. हो सकता है वो 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, या 25,000 हो, या 50,000 हो. तो कितना मिलेगा वो शादियों में एक आपको अमाउंट. तो आपको उस अमाउंट से आपको मल्टीप्लाई करना है. तो यानी कि एक शादी में कितनी शादियां आप करवाएंगे और एक शादी से कितना अमाउंट आपको मिलेगा. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो अर्निंग आता है वो आपको मेरे साथ शेयर करना है. तो आपको मैं 2 मिनट देता हूं ये करने के लिए, और 2 मिनट में आपको ये करके टाइप करके भेजना है. तो यू गॉट टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मैरिजेस को, और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय कितनी शादी, नंबर, अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मैरिज. तो दोनों का क्रॉस करके और इक्वल टू वट एवर अमाउंट इट कम्स, वो अमाउंट आपको भेजना है मेरे पास. तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू डू द कैलकुलेशन. यस प्रमोद, जैसा आपने लिखा है सबको ऐसा ही करना है. तो नंबर ऑफ शादियां कितनी आपको चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करना है एक शादी के एवरेज अमाउंट से. एवरीवन प्लीज टाइप करें एंड गिव मी जस्ट 45 सेकंड्स ब्रेक.
Thank you everyone. There was a challenge with some slides. I think screen share नहीं हो रहा था. Okay, so this is the calculation you got to share. Anybody else? No one is sharing. Okay, so Pramod says 40 शादियां, एक शादी का 15,000, around 6 lakh rupees. Okay, and Ritu says 30 and multiply by 10,000, around 3 lakh rupees. Okay, makes sense. Okay, anybody else? Anybody else? Please do the calculation. And in the meantime, I'll continue the session. Okay, एक मॉडल ये हो गया. Now I'll talk about model wise, because एक मॉडल ये है कि जहां पे आपने एक रफ सा कैलकुलेशन किया कि इतनी शादियां मुझे मिल सकती हैं और इतनी शादियों में से मुझे पर शादी में इतना कॉस्ट मिलने वाला है. दैट इज वन कैलकुलेशन. आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर मॉडल जहां पर आपको करना है कि एक मंथ में कितने वीक होते हैं. अराउंड 4. एक मंथ में होते हैं 4 वीक्स और पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं. अराउंड 52. लेट्स से 50. एक साल में 50 वीक्स होते हैं और अगर 50 वीक्स हैं और अगर हम एक हफ्ते में एक शादी का ऑर्डर लेते हैं, एक हफ्ते में एक ऑर्डर लेते हैं तो 50 मतलब पूरे साल में हमने 50 ऑर्डर लिया. अभी हम इस चीज के ऊपर नहीं सोचेंगे कि 50 ऑर्डर हमें कैसे मिलेंगे, या जैसे प्रमोद ने लिखा है 40 ऑर्डर कैसे मिलेंगे, रितु ने लिखा है 30 ऑर्डर कैसे मिलेंगे, मिस्टर ओप्पो ने लिखा है 100 ऑर्डर कैसे मिलेंगे. तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. अभी के लिए 52 वीक्स हैं. लेट्स प्रमोद इसको 50 ले लेते हैं ताकि एक कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप 50 क्लाइंट लेते हैं इन 1 ईयर, मल्टीप्लाई बाई वट एवर अमाउंट यू डिसाइडेड. आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए और आपको क्या नंबर आता है वो प्लीज शेयर करें. 50 मल्टीप्लाई बाई वट एवर अमाउंट यू पर ऑर्डर. तो इसको मल्टीप्लाई करके प्लीज शेयर इट विद मी. यू आर गेटिंग लिटिल आई ओपनिंग आइडियाज कि कितना क्या कैलकुलेशन हो सकता है. पर वीक की मैं बात कर रहा हूं अभी. दिस इज मॉडल नंबर 2, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और मॉडल नंबर 3 पर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा अभी आपके साथ. डोंट वरी. ओप्पो आप लिखते हैं 55 lakhs, तो आपने पर शादी का कॉस्ट कितना लिया है. आई थिंक 10,000. ओके, हर्षाली हैज टेकन अराउंड 1040 है तो अराउंड 8,000. आई थिंक 8,000 रुपीज. ओके, पर मैरिज. ओके, सो यू गॉट द आइडिया कि 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. ये कैलकुलेशन आपके पास भी है, बट इस कैलकुलेशन में थोड़े से लूप होल्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं. तो लेट्स टॉक अबाउट दोज लूप होल्स कि व्हाट आर दोज लूप होल्स. पहला कि हमने 30,000 शादियों को देखा, बट हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ शादियां ऐसी होंगी जो रिच लोगों की शादियां हैं, उसमें कुछ शादियां ऐसी होंगी जो अपर मिडिल क्लास की शादियां हैं, कुछ शादियां मिडिल क्लास की होंगी और कुछ शादियां लोअर मिडिल क्लास की होंगी. और यही हम गलती करते हैं कि हम अपनी ऑडियंस को सेग्रीगेट ही नहीं करते कि कौन सी ऑडियंस मेरा फोकस है. हम क्या करते हैं, जहां से ऑर्डर आता है ले लेते हैं. कम दे रहा है ले लेते हैं, ज्यादा दे रहा है ले लेते हैं. हर कोई ऑर्डर लेने के लिए तैयार बैठा है. वी डोंट हैव टू डू दैट. हमें अपना एक स्टेटस क्रिएट करना है, एक हमारा लेवल क्रिएट करना है, और हमें ये अवेयरनेस होना चाहिए कि कौन से टाइप की ऑडियंस को मैं टारगेट करने वाली हूं. अगर आपका टारगेट है रिच ऑडियंस, बी इन दैट रिच कैटेगरी ऑफ पीपल. अगर आपका टारगेट है अपर मिडिल क्लास, बी अवेयर कि आपको अपर मिडिल क्लास को टारगेट करना है. अब थोड़ा सा मैं इसमें ऑडियंस एग्रीगेट करता हूं. 30,000 अगर लोग हैं जो शादियां करते हैं हर साल मुंबई में, तो रिच क्लास अराउंड 10%, यानी कि 3,000 लोग ही आपको चाहिए जिन पे आपको फोकस करना है. अपर मिडिल क्लास है 20%, यानी कि सिर्फ 6,000 लोग हैं जिन पे आपको फोकस करना है. 30% है मिडिल क्लास जिस पे आपको फोकस करना है, यानी कि 9,000. और रिमेनिंग इज 12,000 लोग हैं जिसमें आपको 40% के आसपास लोग मिलते हैं. 12,000 के आसपास आउट ऑफ 30,000. अब आपको डिसाइड ये करना है कि विच इज माई टारगेट ऑडियंस, रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. अब मैं आपको एक बात क्यों बता रहा हूं, इससे एक तो आपके एफर्ट कम होंगे. पहली बात, आपको हर जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको अवेयरनेस होगा कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है. आपको ये अवेयरनेस होगा कि मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस के लिए किस टाइप की मार्केटिंग की जरूरत है, यानी कि किस टाइप का फ्यूल मुझे लगेगा. मुझे डीजल लगेगा, डीजल वाला मार्केटिंग लगेगा, या मुझे पेट्रोल वाला मार्केटिंग लगेगा. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. इफ आई एम मेकिंग सम सेंस, प्लीज टाइप सेंस. Please type sense if it is
मेकिंग सम सेंस टू यू? तो किस टाइप का मार्केटिंग आपको लगेगा, तो आपको एनालिसिस यहाँ पे हो जाएगा कि हाँ भाई, मुझे इस टाइप की मार्केटिंग करने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, कोई बोलता है फेसबुक करो, कोई बोलता है इंस्टाग्राम करो, कोई बोलता है यूट्यूब करो। हमें समझना तो चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, किस टाइप का एनर्जी डालना पड़ेगा। तो यू रियली नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट। लेट्स मूव अहेड ना। अभी बात करते हैं रिच क्लास मतलब क्या होते हैं रिच क्लास। तो रिच क्लास वो लोग होते हैं जिनका एनुअल इनकम, फैमिली इनकम 1 करोड़ होता है या उससे ऊपर होता है। अपर मिडिल क्लास अराउंड 30 lakhs ऑनवर्ड्स होते हैं, मिडिल क्लास अराउंड 10 lakhs ऑनवर्ड्स होते हैं, फैमिली इनकम का मैं बात कर रहा हूं। और लोअर मिडिल क्लास जिनका इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए तक होता है। अब रिच क्लास में जो मैरिजेबल कैटेगरी है, यानी कि रिच लोग जो है 30 to 40 एज ग्रुप में शादियां करते हैं। अपर मिडिल क्लास में थोड़ा सा कि 25 to 35 का एक एज ग्रुप है जहां पे लोग शादियां करते हैं, और मिडिल क्लास में 25 to 35 अगेन, और लोअर मिडिल क्लास में शादियां थोड़ी सी जल्दी होती हैं, तो इसलिए मैंने उसको किया है 20 to 25 ईयर्स। तो शादियों के लोगों का कैटेगरी आपको समझना है कि उनका एज ग्रुप क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, और क्या वो शादी करने की एज ग्रुप में है या नहीं है। अगर यहां तक सबको क्लियर है, प्लीज टाइप क्लियर। Please type clear if it is clear till now. I hope everyone is clear till now. Okay, let's move ahead. अब बात करते हैं रिच लोग जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा की इनकम करते हैं, तो वहां पे ऑन एन एवरेज मेकअप आर्टिस्ट को 1 लाख रुपया ऑनवर्ड्स मिलता है पर शादी की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो अपर मिडिल क्लास है तो वहां पर जो एक इनकम होती है दैट इज समवेयर अराउंड 50,000 to 1 लाख रुपीज, और मिडिल क्लास में जो इनकम होती है 20,000 to 50,000 रुपीज, एंड लोअर मिडिल क्लास में जो इनकम होती है मेकअप आर्टिस्ट की दैट इज 5,000 to 50,000। If you agree with this slide, please agree so that I know which direction to move in. If you agree, please type agree. If you don't agree, please type not agree. Sorry आपको बार बार मैं टाइपिंग के लिए बोल रहा हूँ, but I think it is very very necessary to shake our mindset. Thank you everyone. Okay, अब बात करते हैं कि अगर रिच लोगों में अगर 1 लाख रुपया एक शादी का मिलता है और हमारा टारगेट है 10 लाख रुपया, तो हमें कितने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा अगर हमें एक मेकअप से 1 लाख रुपया मिलता है। और मैं रिच क्लास की बात कर रहा हूं, मैंने रिच क्लास का डेफिनेशन आपको बताया है। तो अराउंड 10 क्लाइंट चाहिए आपको एक साल में 1 लाख रुपए के हिसाब से 10 लाख बनाने के लिए। अपर मिडिल क्लास में जहां पे 50,000 रुपीज का इनकम होता है एक शादी से, 50,000 to 1 लाख होता है, मैंने लोअर साइड लिया है। तो 50,000 का अगर बात करें तो आपको सिर्फ 20 शादियों का जरूरत पड़ेगा 10 लाख रुपया बनाने के लिए। और अगर मैं मिडिल क्लास का बात करूं जहां पे 20,000 रुपया एक शादी मिलता है, तो आपको 50 क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और तीसरा जो है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास में है तो वहां पे आपको 200 क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी एक साल में 10 लाख बनाने के लिए। अब यहाँ पे कितने लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोअर क्लास में आ रहे हैं, शायद हमारी फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं और उतने क्लाइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो एक थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो होता है। एक दूसरा एनालिसिस, जैसे जैसे हम सुपर रिच क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो हमें कम चाहिए, बट कहीं ना कहीं डर दिमाग में रहेगा कि इतने क्लाइंट के लाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, किस टाइप की मार्केट। अब आपको यहाँ पे अगर ऑडियंस भी क्लियर है, आपकी टारगेट ऑडियंस का क्लैरिटी हो गया है कि कौन सी क्लास को मैं टारगेट कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी होती है, विच इज अ केक वॉक, एनीबॉडी कैन डू इट, विच आई विल टॉक अबाउट इट इन सम टाइम। Let's move ahead. This was another model, so I will not talk about this model. Let's not talk about that. Okay. अब एक मौके की बात करता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूँ। अभी कोरोना लॉकडाउन चल रहा है और आई थिंक ये शादियों का सीजन था जो अभी शुरू हुआ था, और काफी सारी की सारी शादियां कैंसल्ड हैं, राइट। एंड नाउ अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी वाले लोग हैं वो क्या देखेंगे, अब वो लोग शादियां तो करेंगे, शादियां सिर्फ पोस्टपोन हुई हैं,
बिकॉज जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा शादियों की एक बाढ़ सी आ सकती है, इफ नॉट इन अक्टूबर और सॉरी जून जुलाई अगस्त सितंबर, मे बी इन नवंबर दिसंबर। तो जो लोग अभी शादी नहीं कर पाए हैं वो डेफिनेटली उस टाइम पे शादी करेंगे। तो कितने सारे लोगों को लगता है कि ये प्रिपरेशन का टाइम है, और ये आप जितना ज्यादा अभी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे मेंटली एंड एजुकेशन वाइज, तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट बाय देन, क्योंकि वो शादियां कैंसिल हुई हैं, पोस्टपोन हुई हैं, कैंसिल नहीं हुई है, सॉरी कैंसिल नहीं हुई है, पोस्टपोन हुई है। तो शादियों का सीजन डेफिनेटली आने वाले नवंबर दिसंबर में, अगर कोरोना थोड़ा सा सेटल हो जाता है, डेफिनेटली वो सारी चीजें बढ़ेंगी। लेट मी चेक वन स्टेटमेंट, somebody is saying something. Okay, Mahida, Vidya, if you have a question, that is okay. I'll take your question. No problem with that. So let me go with flow. It's a preparation time for wedding after the lockdown is shift lifted up. Voice break हो रहा है. Okay, no problem. तो yes, it is a preparation time for wedding. तो definitely आपको preparation करना जरूरी है. अब बात करते हैं next. अब मार्केट में अभी मैंने आपको एक व्हीकल की तरह मेकअप को ट्रीट करने बोला था। उस व्हीकल में हमें ड्राइवर हमारा कौन है? मेकअप, मेकअप आर्टिस्ट, और उसका फ्यूल क्या है? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में स्ट्रांग रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला, ऑथेंटिसिटी, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी आपको डेफिनेटली बिजनेस दिलवाएगी। तो आपके अंदर ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, जेन्युइनिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका वैल्यू प्रपोजिशन अच्छा होना चाहिए कि आपको क्लाइंट को क्या वैल्यू दे रहे हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप क्लाइंट को दे सकते हैं, पर ट्रस्ट करना पड़े। आपकी मेकअप की नॉलेज कैसी है? डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल लेवल क्या है मेकअप में, वो डेफिनेटली मैटर करेगा कि आप अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश कर पाए। तो अब बात करते हैं 3 टॉप सीक्रेट टू अचीव योर गोल। तो पहला सीक्रेट है राइट ऑडियंस, जैसा कि मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया शादियों को लेकर। और दूसरा है राइट मार्केट, और तीसरा जो सीक्रेट है दैट इज राइट सर्विस। सो लेट्स बिगिन विद वन बाय वन। तो राइट ऑडियंस, तो राइट ऑडियंस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, ओके वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन एवरीवन हियर नाउ? एम आई क्लियर नाउ? आई थिंक मैंने माइक को जरा पकड़ा नहीं था। अभी मेरा वॉइस क्लियर है? इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर। ओके, तो आई होल्ड द माइक, क्योंकि मैं माइक को शायद पकड़ के नहीं बोल रहा था। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो पहला सीक्रेट है दैट इज प्रोफाइलिंग ऑफ द ऑडियंस। तो प्रोफाइलिंग ऑफ द ऑडियंस का छोटा सा मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। और इस प्रोफाइलिंग ऑफ द ऑडियंस के बाद अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर को लिखना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आप अपनी ऑडियंस को प्रोफाइल करें। अभी आपको यहाँ पे ये एनालिसिस करना है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटस सामने वाले क्लाइंट का तो देखना ही है, इसके साथ साथ आपको अपना एक कंफर्ट जोन भी चेक करना है कि कौन से टाइप की ऑडियंस के लिए आप बेस्ट फिट हो। तो ये एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं सुपर रिच को टारगेट करना चाहती हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो आपको एक अपना मेंटल प्रिपरेशन करना है कि विच इज माई ऑडियंस विच आई कैन हैंडल इफेक्टिवली। अगर आपको लगता है कि अगर आपको गैप लगता है कि आई वांट टू टारगेट अपर मिडिल क्लास बट आई डोंट नो कि मैं उसके लिए कौन सी क्वालिटीज का अपने अंदर लेकर आऊं, इट मींस यू आर मिसिंग समथिंग इन द लर्निंग। तो आपको कुछ ऐसी लर्निंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आप एक अपर मिडिल क्लास को टारगेट करें, और उसके लिए उसके हिसाब से आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें उन लोगों से बात करते हुए। सेकेंड इज एज ग्रुप। एज ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको डेफिनेटली एनालिसिस करना है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से अपनी ऑडियंस को डिसाइड किया है तो उसमें मैरिजेबल एज ग्रुप क्या है। उसके बाद उनकी डिजायर। डिजायर अभी बोलने में तो इस इजी है कि हर दुल्हन चाहती है कि मैं अच्छे से दिखूं, बहुत ब्यूटीफुल दिखूं, बट आर दे रेडी टू स्पेंड दैट मच टू लुक दैट काइंड ऑफ व्हाट दे आर इमेजिनिंग? So this analysis has to be done. Now, moving on to the next, let's talk about agar secret number 1 is clear about the audience, please type clear so that I can make a move ahead. If it is clear, please type clear. If you are with me till now, please type clear agar yahan tak clear hai. Okay, अभी बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2 की।
ओके, सीक्रेट नंबर 2 इज राइट मार्केट। फ्यूल क्या देंगे आप मार्केट, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप ड्राइवर हैं, लेकिन क्या आप गाड़ी चला पाएंगे अगर गाड़ी के अंदर फ्यूल ही नहीं होगा, डीजल या पेट्रोल ही नहीं होगा गाड़ी के अंदर? डेफिनेटली नहीं चला पाएंगे। तो आपको मार्केट करना जरूरी है, और मार्केट में आपको दो चीजें समझ में आती हैं कि ऐसे लोगों को मैं कहां ढूंढूं। तो देयर आर ओनली टू वेज टू फाइंड दिस पीपल। तो पहला है, द फर्स्ट मेथड इज कि हम उनके पास जाएं। तो हम उनके पास जाएं, एक ये तरीका हो सकता है कि हम ही उनके पास जा रहे हैं बात करने के लिए, और कुछ लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं कि मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर जाना है, जहां पे पता है हमको, वहां पे उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी लिखा होता है, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, अप्रोक्सीमेट डेट क्या है मैरिज की। तो काफी सारा डेटा इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाता है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। और दूसरा जो मेथड है कि वो ही हमें अप्रोच करें, या तो मैं तो नहीं जा सकती अभी, ढूंढने कैसे होंगी, तो वो लोग मुझे अप्रोच करें। तो जब मुझे अप्रोच करने की बात आती है, तो यानी कि मेरे पास मेरा सोशल मीडिया लेवल काफी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, वहां पे मेरे पास कंसिस्टेंस प्रेजेंस होनी चाहिए, वहां पे मेरे पास पोस्टिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि लोग मेरे प्रोफाइल को देखें और उसके बाद मुझे वो खुद अप्रोच करें। क्या किसी सोशल मीडिया पे कोई ऐसे अप्रोच करेगा भाई आपने एक पोस्ट आज डाला है कि आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट एंड आई डू द मैरिजेस ऑफ रिच पीपल एंड इफ यू वांट टू गेट मैरिड कॉन्टेक्ट मी? नोबडी इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, क्योंकि आपको वो कंसिस्टेंसी उसके अंदर दिखानी पड़ेगी। सोशल मीडिया के ऊपर आपको एविडेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। जब आप मेकअप सीख रहे हो, उसी टाइम पे जितने ज्यादा फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस आप कलेक्ट कर सकते हैं, प्लीज आप कलेक्ट करें और उनको अपने पास रखें। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फोटो एंड वीडियो आपको एक साथ डालने हैं। मेक अ शेड्यूल। अभी मैंने जो मॉडल नंबर 2 का बात किया था, जहां पे हर वीक क्लाइंट लेने की बात हो रही थी, तो हर वीक अगर आपके पास 50 फोटो भी हैं, तो यानी कि आपके पास पूरे साल का मार्केटिंग कंटेंट रेडी है कि हर हफ्ते आपको एक फोटो डालना है, एक वीडियो डालना है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर। प्लीज टाइप क्लियर इफ इट इज क्लियर टिल नाउ। थैंक यू एवरीवन। ओके, अभी मैंने जो सजेशन दिया था कि एक मेकअप आर्टिस्ट को एक हफ्ते में एक से ज्यादा ऑर्डर ना ले। हालांकि आई अंडरस्टैंड कि कुछ सीजनल टाइम होता है और कुछ ऑफ सीजन होता है शादी के मामले में, बट एक एवरेज लेते हुए अब सवाल ये है कि लेट्स से कि आप एक ऑर्डर एक हफ्ते में ले रहे हो। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आई नो प्रैक्टिकलिटीज थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि ऑर्डर आते हैं तो सारे एक साथ आते हैं या तो एक भी नहीं आता है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है। अगर आप एवरेज ये मान के चलें, लेकिन टारगेट आपका क्लियर है कि मुझे साल में 40 या 50 ऑर्डर तो लेना है, एवरीवन इज क्लियर, करेक्ट, यानी कि वीक का एक ऑर्डर का एवरेज आ रहा है। तो पॉइंट इज कि अगर आप हफ्ते में एक ही दिन काम कर रहे हैं ब्राइडल ऑर्डर को लेकर, तो बाकी के 5 दिन क्या काम कर रहे हैं? हफ्ते के 7 दिन है, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन आप ऑर्डर ले रहे हैं, तो बाकी के 5 दिन क्या कर रहे हैं? तो ये 5 दिन आप गाड़ी में फ्यूल डालने काम कर, जहां पे आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर या लोगों से कनेक्टिविटी बनाने के ऊपर आप अपने काम की बात करते हो, फीडबैक की बात करते हो, आप अपने वीडियोस क्रिएट करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो और नेक्स्ट क्लाइंट की प्रिपरेशन करते हो। और अगर आपकी लर्निंग में कुछ लूप होल है तो वो सीखने का आप ट्राई करते हो। दैट इज हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। फ्रीलांसर का मतलब डेफिनेटली ये नहीं होता है कि फ्री रहना है, और ज्यादा करके फ्रीलांसर फ्री ही रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। बट दे फॉरगेट दिस फैक्ट कि फ्रीलांसर का मतलब भी ये है कि आपको 8 घंटे खुद के लिए डालने हैं, खुद काम करना है। अब वो काम मेकअप और में करना है कि मार्केटिंग में करना है कि सेल में करना है, वो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग का मतलब फ्री रहना नहीं होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब यूटिलाइजिंग योर टाइम एंड यू मस्ट वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, जस्ट लाइक अ जॉब। जैसे जॉब में क्या होता है कि दूसरे लोग आपके सर पे बैठे रहते हैं तो हमें 8 घंटे काम करना होता है, लेकिन जब जैसे हम फ्रीलांसर बनते हैं तो हमें ये फीलिंग आता है कि हम तो हमारे बॉस हैं। बॉस है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उतनी ही मेहनत आप खुद के लिए करोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फ्रूटफुल ये बन जाएगी बात। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लर्न कि क्या करना है जब हमारे पास ऑर्डर नहीं है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रीलांसर के साथ, जो कॉमन प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं होता कि मेरे पास ऑर्डर नहीं है तो अब मैं क्या करूं। और वही एक स्टेज ऐसी होती है जहां पर वो काफी वीक पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं यार मेकअप आर्टिस्ट तो बेकार का काम है, मुझे इसके अंदर आना ही नहीं चाहिए था, मैं कुछ दूसरा कर लेती हूँ। विदाउट रियलाइजिंग कि आपने मेकअप आर्टिस्ट्री सीखा लेकिन आपने फ्यूल और सेल्स नहीं सीखा। तो अब ये कितने लोगों को क्लियर हुआ कि अगर मेरे पास ऑर्डर नहीं है तो भी मुझे क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो अगर आपने कुछ सीखा है यहाँ पर तो टाइप करें लर्न। लर्न, LEARNED, लर्न। Okay, what to do when there is no work. I'll talk little more about it. Okay, thank you so much. Next is secret number 3 is right service. तो राइट सर्विस डेफिनेटली जरूरी है। अगर आपने ऑर्डर ले लिया है और ऑर्डर आया है और ऑर्डर जब आता है तो आपको राइट सर्विस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राइट सर्विस का मतलब है क्या कि ट्रेंडिंग मेकअप क्या चल रहा है वो आप तभी कर पाएंगे जब एज ए फ्रीलांसर आप फ्री ना होकर आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट आप एनालिसिस कर रहे हैं और आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को एक्टिव रख रहे हैं, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। और जब आप अपने काम में कंसिस्टेंस होते हैं डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलेगा ही। और दूसरा है वैल्यू एडिशन सर्विसेज। वैल्यू एडिशन सर्विसेज का मतलब कि साथ में आपने मेकअप तो सीखा ही, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने हेयर स्टाइलिंग सीख लिया और वो सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपने क्लाइंट को। कोई क्लाइंट क्यों मना करेगी अगर उसको हेयर स्टाइलिंग का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा उसकी शादी में। तो इट इज अ वैल्यू एडिशन सर्विस व्हिच इज वेरी मच नेसेसरी। तीसरा जो हम हमेशा भूल जाते हैं या हम शाई होते हैं और या हमें लगता है कि हमें ये करना क्या है इस चीज का, कि आप ब्राइड या ग्रूम के साथ अपना एक फोटो डेफिनेटली लें और फीडबैक डेफिनेटली लें, क्योंकि फीडबैक से उस टाइम पे कोई मना नहीं करेगा आपको और आपको डेफिनेटली उस चीज में पॉजिटिव मिलेगा। और जब आपको फीडबैक मिलता है और उनका परमिशन लें कि क्या ये पोस्ट मैं आप मेरे सोशल मीडिया पे डाल सकती हूँ या नहीं। अदरवाइज भी वो चाहते ही हैं कि उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, शादी के फोटोग्राफ्स वो वैसे भी फेसबुक वगैरह वगैरह पे डालते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको भी यस बोलेंगे कि हाँ डाल दो भाई, आपने मेकअप किया है तो आप तो डाल ही सकते हो। तो दिस इज समथिंग very very important to take feedback from the client and use it for your benefit. So अब यहां तक आपको अगर समझ में आया है क्लियर तो प्लीज टाइप इन क्लियर। प्लीज टाइप क्लियर if you are clear till now. थैंक यू। ओके, अब कितने लोगों को सीक्रेट नंबर 3 का जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं वीक का एक क्लाइंट भी पकड़ के चलता हूं तो अराउंड 48 क्लाइंट या 50 क्लाइंट इन अ ईयर हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये मार्केटिंग करते हैं, जब आप ये सर्विसेज देने जाते हैं, जब वहां पे आप उनसे फीडबैक मांगते हैं, उनके फोटोग्राफ्स को शेयर करने की बात करते हैं, तो डोंट यू थिंक कि आपको सिर्फ 50 नहीं, 50 पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, 48 वीक्स होते हैं, तो 24 क्लाइंट ही आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बाकी के 24 का रेफरेंस तो आपको वो लोग खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि एक रेफरेंस अगर एक शादी से आप नहीं ले पाए, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद यू। तो आपको डेफिनेटली उस पर एनालिसिस करना है कि कोई ऐसी मिस्टेक तो मैं नहीं कर रही हूँ मार्केटिंग में या सेल्स में या फिर मेरे काम में कि मुझे रेफरेंस नहीं मिल रहा है। एक शादी में ऑन एन एवरेज कम से कम भी बात करें 50 to 100 लोग होते हैं और 50 to 100 लोग सारे फैमिली वाले होते हैं और उनमें से किसी ना किसी की शादी पेंडिंग होती है। तो वहां से अगर एक रेफरेंस भी आप नहीं निकाल पाए, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद यू और यू आर मेकिंग समथिंग some gross mistake, और if none of this is there then it means आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं पता है जो दूसरे मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो it means there is some lack of knowledge which you need to know. So how many of you realize कि makeup artistry is a vehicle to fulfill your dream, to take care of myself independently, to lead a respectable life for myself?
to regain my respect as a housewife, to rebreathe by restarting my career after marriage, to provide good education and good care to my kids. And then you can find out which institute can provide you all these things as a good vehicle जो आपके vehicle को अच्छा चलाने में मदद करे. तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर. प्लीज टाइप क्लियर. इट इज क्लियर टिल नाउ. अब एक इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है जहां पे हम बात करेंगे कि मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअली क्या मिस्टेक करते हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग. अब ये सारी की सारी इंटेलेक्चुअल बातें हैं. आप भी बोलेंगे हाँ यार ये पता तो है, मैं तो एक्शन ही नहीं लेती. लेकिन ना पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं गोल अचीव नहीं करने के लिए या नहीं कर पाते हैं तो अपनी ऑडियंस का प्रोफाइलिंग नहीं करते हैं. अब आपको पता है ये चीज, और इस चीज को पता लगाने के लिए आपने कुछ पे भी नहीं किया है. तो आप ये चीज जानते हैं कि ऑडियंस का प्रोफाइलिंग जरूरी है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रॉस मिस्टेक. कि कोई भी जो आर्टिस्ट है मेकअप आर्टिस्ट वो ऑडियंस का प्रोफाइलिंग नहीं करते हैं. सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते. या तो वो क्या करते हैं, टू मच एक्शन लेते हैं या फिर नो एक्शन. आज जोश में है, एक महीना जोश में, रोज पोस्ट आएंगे, शायद दिन में 10-10 पोस्ट डालना शुरू करेंगे और उसके बाद वो बोर हो जाएंगे और फिर बोलेंगे यार अगले महीने से फिर 3-4 महीने तक दिखाई नहीं देते, विच इज अ रॉन्ग अप्रोच. तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है. हमें सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी रखनी है. और तीसरा जो है कि अपने क्लाइंट से वो लोग रेफरेंस नहीं निकाल पाते या फीडबैक नहीं निकाल पाते, जबकि काम अच्छा किया होता है. अगर उसके बाद भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है और हमें नई मार्केट में जाने की जरूरत पड़ रही है, it means something is missing in your action which you need to learn, which you need to know. So if it is clear till now, please clear. Okay, let's move ahead. Now we will talk about 3 simple steps to achieve your goal. तो अभी तक मैंने जो आपके साथ शेयर किया था वो सीक्रेट शेयर किए थे. अब मैं स्टेप्स की बात करूंगा, क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्योंकि एक साल में 10 लाख रुपया अगर बनाना है तो कुछ तो डेफिनेटली स्टेप्स लेने होंगे, और उन स्टेप्स को देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं वो. स्टेप नंबर 1, करेक्शन टाइम. स्टेप नंबर 2, प्रिपरेशन टाइम. स्टेप नंबर 3, कलेक्शन टाइम. लेट्स टेक वन बाय वन. करेक्शन टाइम. तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता है कि कितने टाइम तक का करेक्शन टाइम होना चाहिए. यानी कि अब आप लेट्स से कि अगर आप मेकअप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो आपका जो मेकअप का कोर्स है वो अराउंड 1 से 2 महीने में हो जाता है, डिपेंडिंग कि आप डेली क्लास ले रहे हैं ऑल्टरनेटिवली क्लास ले रहे हैं. अब मेकअप में होता क्या है कि बहुत ज्यादा करेक्शन की जरूरत होती है. बिना मेंटर के काम हो नहीं सकता है. कोई ना कोई आपको टीचर गाइड की जरूरत डेफिनेटली हर स्टेप पे पड़ती है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही है. तो दिस फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे जितना ज्यादा आप ट्रायल एंड एरर करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा. देयर इज वन लाइन दैट आई कॉमनली यूज्ड, फेल फास्ट, फेल डिफरेंटली. व्हिच मींस कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप स्टेप ले रहे हो, अगर उसके अंदर फेल होना लिखा है तो फटाफट फेल हो जाओ, ताकि आपको सही चीजें पता चले और सही चीजों पे आप काम करते जाओ और आपकी करेक्शन जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए. उसके बाद आता है प्रिपरेशन टाइम. प्रिपरेशन टाइम में जहां पे हम बात करते हैं ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने का मतलब कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मैं किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करूं. ये दिखने में इजी है, बट जब हम एक्चुअली करने जाते हैं देन वी सेंस कि नहीं ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल चीज कर रही है. अब दो चीजें हैं, जो चीज अनकंफर्टेबल कर रही है या तो उसको सीख लिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए और कोई तीसरा रास्ता निकाल लिया जाए. सो दैट इज एनालिसिस वहां पे बहुत ज्यादा चाहिए होता है. तो आपको आपकी ऑडियंस की प्रिपरेशन करनी होती है, राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की प्रिपरेशन करनी होती है और सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट आपकी होती है. तो जब आप ये एनालिसिस भी कर लेते हैं उसके बाद आता है आपका कलेक्शन टाइम, कि आपने ऑडियंस अपनी सेट कर ली, आपने सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट लेवल पे प्रेजेंट है, आपने राइट सर्विस देने का भी एक प्रोटोकॉल बना लिया है. मे बी यू कैन मेक अ चेकलिस्ट कि जब भी सर्विस देने जाना है तो दिस इज माय चेकलिस्ट. तो आपने अपने आप को एक ओरिएंटेड कर लिया ऐसे एनवायरनमेंट में कि आपको दोबारा से सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. नाउ यू हैव अ रेडीमेड फॉर्मेट और जिस चीज को आपको फॉलो करना है.
So this is how you can earn 10 lakh rupees. Now action template is कि I want to become a makeup artist because, तो यहाँ पे आपके डेफिनेटली 3 रीजन होने चाहिए, और जो रीजन अभी आपको मैंने बताया कि इमोशनल लेवल पे क्या रीजंस हैं आपके, और फाइनेंशियल लेवल पे कितना पैसा और क्यों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मुझे वाकई में ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप नहीं भी लेना चाहते, बिकॉज देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस व्हिच कैन ब्रिंग यू मनी. बट हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जिन चीजों में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले 5 साल से, जहां पे हमने सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट क्रिएट किए हैं, सक्सेसफुल स्पा थेरेपिस्ट क्रिएट किए हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्रिएट किए हैं, जिनके इंडिया में नहीं इवन अब्रॉड में भी उन्होंने अपने सेटअप डाले हैं और अच्छा खासा वो लोग कमा रहे हैं. दूसरा है कि आई वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट बाय अ पर्टिकुलर डेट. तो यहाँ पे ये लिखेंगे आप, तो ही आपको क्लैरिटी मिलेगी और तो ही आप एक्शन ले पाएंगे. अब यहाँ पे एक बात क्या है कि मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफर. तो अगर ऑफर सुनना चाहते हैं आप लोग तो यू कैन बी हियर, और अगर ऑफर नहीं सुनना चाहते इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप सेशन से निकल सकते हैं. बट एक चीज है कि ऑफर के बाद मैं डेफिनेटली बहुत सारी करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं, और वो करियर ऑप्शन शायद आपने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे कि मेकअप में क्या क्या चीजें हैं जो हमें करियर ला सकती हैं. अभी तक जो हमने एग्जाम्पल का बात किया है वो सिर्फ शादियों को लेकर बात किया है. देयर आर मेनी मोर थिंग्स. इनफैक्ट मैं ऐसी ऑप्शंस का भी बात करने वाला हूं कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं बट आप एक का भी मेकअप नहीं कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर मेकिंग मोर मनी देन अ मेकअप आर्टिस्ट. तो इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज स्टे इन, else that is absolutely fine. So choice is yours. So after the offer I'm going to talk about it. So let's talk about the offer first. तो ऑफर इज 1 मंथ का कोर्स है, 10 थियोरी क्लासेस है ऑनलाइन 1 आवर ईच, 20 प्रैक्टिकल सेशंस है ऑफलाइन 2 आवर ईच. ऑनलाइन थियोरी क्लासेस स्टार्ट्स फ्रॉम कमिंग सैटरडे दैट इज 7 PM एंड प्रैक्टिकल सेशन लॉकडाउन के बाद होंगे. और फीस जो है उसका 1,06,200 रुपए का है, और लॉकडाउन का जो प्राइस है दैट इज 35,500 रुपीज. एंड आपको थियोरी सेशन अटेंड करने के लिए सिर्फ 5,500 रुपया पे करना है, और रिमेनिंग 30,000 आपको तब पे करना है जब आपका प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा लॉकडाउन के बाद. और ये ऑफर आज के लिए ही है, तो आपको आज में ही एक्शन लेना है. तो जो 10 थियोरी सेशंस है 5,500, रिमेनिंग अमाउंट 30,000 जो आप प्रैक्टिकल क्लास से पहले पे कर सकते हैं. ऑफर वैलिड फॉर 15 मिनट्स ओनली. एंड ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आप पेमेंट अपना कर सकते हैं ट्रांसफर गूगल पे, फोन पे या तो पेटीएम, और या फिर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं. और इसका 10% अमाउंट जो है वो हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा है उसमें 10% जाएगा, बिकॉज दोज पीपल आर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द फूड्स एंड ऑल. If any question, you can type in your question and why you should join. Now, this is something interesting that is going to happen. See, we are the most innovative institute in makeup. तो ये टैग हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें इस कैटेगरी में अवार्ड भी मिल चुका है, and it is there in our institute. When you come, you can see it. और डिमांड बहुत ज्यादा है स्किल्ड मेकअप आर्टिस्ट की, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट्री को कमर्शियली भी नहीं यूज करना चाहते तो भी आई थिंक 30-40,000 का एक प्राइस है, जो आप अगर किसी अपनी सिस्टर या फैमिली रिलेटिव का भी मेकअप कर देंगे तो भी आपका पेमेंट रिकवरी हो जाता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, why should you should be a makeup artist? 1, blogger. तो अगर ये ऑप्शन अगर आप जानते हैं प्लीज टाइप करें yes, और अगर नहीं जानते प्लीज टाइप करें no. Please type yes if you know this option, and please type no if you don't know this option. Okay, Seema says no, Harshali says no. Okay, blogger is someone जो मेकअप आर्टिस्ट होता है, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट्री का ऑर्डर ना लेकर बल्कि वो उसके बारे में एक अपनी एक वेबसाइट बनाता है या ब्लॉग जिसको बोलते हैं वो बनाता है, और उसके ऊपर वो लिखना शुरू करते हैं मेकअप के बारे में. आई थिंक यहां तक क्लियर है. इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर, और यू वांट मी टू रिपीट, आई विल रिपीट. प्लीज टाइप क्लियरली. ब्लॉगर इज समवन जो अपना एक वेबसाइट क्रिएट करता है, उसका ऑर्डर लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ मेकअप के बारे में बात करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं. अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा.
let's take an example. Okay, जो इसको आप गूगल करिएगा, जो सुग, जिसके ब्लॉग का नाम है जोएला एंड शी स्टार्टेड इन 2009. अभी मैं इस पे डिटेल में थोड़ी देर में जाऊंगा. उसके बाद है हुडा काटन. इसको कितने लोग जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो प्लीज टाइप करें यस, अगर नहीं जानते तो प्लीज टाइप करें नो. Very, I'll talk about it. If you know the person, yes. If you don't know the person, type yes, or type yes if you know the person, type. ठीक है, अभी ड्यू कोर्स में आपको पता चल जाएगा. हुडा काटन जिन्होंने अपना ब्यूटी ब्लॉग लॉन्च किया था 2010 में. तो जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था 2009 में शुरू किया था उन्होंने ब्लॉग, और ये 2010 में शुरू किया. और इस इनके ब्यूटी ब्लॉग का नाम ही ब्यूटी ब्लॉग है. और इन्होंने जो टाइटल भी मिला था इंटरनेट पे, इंटरनेट्स मोस्ट रेड ब्यूटी ब्लॉग. तो ये इतने ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे. Let's talk to the next option. Then you can be now coming back to YouTuber again. जो सुख, जिसका मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था, उन्होंने अपना करियर शुरू किया एज अ ब्लॉगर, स्टार्टेड इन 2009. Later the blog Joyla was expanded into YouTube channel. तो इसके बाद जैसे ही ब्लॉग उनका फेमस हुआ तो उन्होंने YouTube चैनल भी बना दिया. और इसके साथ एक दूसरा आप बात करते हैं, यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर. ये सारे के सारी नई चीजें नहीं है, सिर्फ हो सकता है आपके लिए नई चीजें हैं क्योंकि इसका अवेयरनेस काफी टाइम से चल रहा है. बट मेकअप को इंडिया में थोड़ा सा प्रमोट इस तरीके से किया जाता है कि शादियों के हिसाब से आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है. अब मैं एक इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल देता हूं. अगेन हुडा कॉटन, जिन्होंने ब्यूटी ब्लॉग शुरू किया था 2010 में. टाइटल मिला इंटरनेट मोस्ट रेड ब्यूटी ब्लॉग. उसके बाद लेटर शी बिकम अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर. ब्यूटी इन्फ्लुएंसर मतलब एक ऐसा पर्सन जो अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट को माना जाता है. मतलब दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट. अगर इन्होंने बोला कोई अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर इन्होंने बोला कि कोई बुरा है तो वो बुरा है. और इनका ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का जो अर्निंग है, दैट आई हैव रिटन कि शी इज अ हाईएस्ट पेड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर. जो लोग जानते हैं प्लीज थोड़ा सा रुके, मैं इनके बारे में अभी थोड़ी देर में और बताने वाला हूं. आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं. और आप क्या क्या कर सकते हैं? थिएटर मेकअप कर सकते हैं, शॉर्ट मूवीज का मेकअप कर सकते हैं, वेब सीरीज में काम कर सकते हैं, इवेंट्स में काम कर सकते हैं. मैरिजेस ऑलरेडी इतना डिटेल में डिस्कशन हुआ है. मूवीज, एडवर्टीजमेंट. और जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया एंड अब्रॉड में बहुत ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड लोगों को ही जॉब मिलेगा, सबको जॉब नहीं मिलेगा. यू कैन बी एन एजुकेटर, you can be an academy owner, you can be a studio owner, or you can be a cosmetic product owner. Now business owner की बात करते हैं. अभी business owner भी आप बन सकते हैं. तो same story, why I'm keeping these two people in light, because आपको शुरू से लेके एंड तक एक स्टोरी समझना जरूरी है कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है. तो जो सुग ने पहले ब्लॉग लिखा जोयला के नाम से 2009 में शुरू किया. लेटर वो ब्लॉग एक्सपेंड हो गया यूट्यूब चैनल में. अब यूट्यूब चैनल के बाद उन्होंने ब्यूटी एम्पायर खड़ा किया बाय वीडियो कंटेंट, कॉस्मेटिक लाइन एंड नंबर ऑफ सेलिंग बुक्स, जो कि पूरी बुक्स है उन्होंने बाद में. और इनका पर इंस्टाग्राम पोस्ट का प्राइस देखिए, $16,000. अगर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डलवाना है किसी को तो $16,000 वो चार्ज करती है. और उनकी YouTube की अर्निंग इन करोर्स एंड मोर देन करोर्स इट इज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पर्सन. शी इज हुडा. हुडा ब्यूटी का नाम आपने सुना होगा. तो शी इज अ ओनर ऑफ हुडा. तो शी वाज द पर्सन जिसने ब्यूटी ब्लॉग शुरू किया 2010 में. उसके बाद 2013 में उन्होंने हुडा ब्यूटी शुरू किया. और उसके बाद बिजनेस की ओनर बनी. और बनने के बाद आज हुडा ब्यूटी को हर घर भी मेकअप आर्टिस्ट है, हर कोई जानता है. तो शी इज ओनर ऑफ दैट बिजनेस. तो नाउ हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि जब हम काम शुरू करते हैं तो शायद शुरुआत करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत आसान होता है. क्योंकि दुनिया हमें अपने आप बता देती है कि मिस्टेक करने से या सीखने से या मेंटरशिप से हम सीख ही जाएंगे.
नाउ अब आपको हमारे यहाँ पर क्या क्या मिलता है, ऑनलाइन थियरी लर्निंग मिलेगी, ऑफलाइन प्रैक्टिकल सेशंस है, रेगुलर फोकस अलाइनमेंट है, लाइक माइंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है, प्रो मेकअप सर्टिफिकेट, मीडिया विजिबिलिटी है, और जो आज इनरोल करते हैं डेफिनेटली उनको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट मिलेंगी ऑनलाइन सेशंस के बारे में, और फ्री कम्युनिटी मेंबरशिप मिलती है मेकअप लीडरशिप मास्टरमाइंड की, जहाँ पे मार्केटिंग के वीडियोस वगैरह हैं जो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे, तो वो उस चीज का आपको मिलता है। और हमारी जो क्लासेस है वो अंधेरी वेस्ट में होती हैं एट नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। एंड नाउ व्हाई जॉइन अस, सी बिकॉज हम एक चीज में बिलीव करते हैं आपकी सक्सेस इज वेरी इजी। उसका रीजन क्या है, सक्सेस इज वेरी इजी बिकॉज काफी लोग इसको पाना ही नहीं चाहते। काफी लोग ऐसे हैं जैसे गाड़ी चल रहा है चलने दो, लाइफ चल रही है चलने दो, अनलेस दे आर टोटली इनटू ट्रबल तब तक वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो आई थिंक अगर आप एक्शन टेकर हैं तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस इज एक्चुअली वेरी इजी। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेप्स लेने जरूरी होते हैं। वी मेक यू फेल फास्ट, फेल डिफरेंटली, बिकॉज जितना जल्दी जितना फास्ट आप फेल होंगे उतना ही जल्दी आपके सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। और उसके बाद वी मेक यू टेक एक्शन, हैंड होल्डिंग मतलब हर स्टेप पे मिलता है, और आपका कोर्स होने के बाद भी आपको हैंड होल्डिंग मिलता है, क्योंकि बताया मेकअप मास्टरमाइंड लीडरशिप ग्रुप के आप मेंबर बना दिए जाते हो, जहां पे आपको वीडियोस मार्केटिंग के, सेल्स के वीडियोस, हर चीज आपको वहां पर मिलती है। ये हमारे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। द मिडल गाय इज फ्रॉम श्रीलंका, इवन दिस गर्ल इज फ्रॉम श्रीलंका, दैट गर्ल इज फ्रॉम यूएस। सो ऑल दीज आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड वी नो कि सक्सेस इज इजियर व्हेन यू हैव अ मेंटर। तो दो चीजें हैं सक्सेस को हासिल करने की, एक तो हम अपनी गलतियां करते जाएं, टाइम को वेस्ट करते जाएं, और या फिर हम एक ऑलरेडी ऐसे मेंटर को ले लें जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, इस फील्ड में एक लेवल पे पहुंचे हुए हैं, और उनसे हम मेंटरशिप ले लें और अपना टाइम बचा लें। और हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट है फ्रॉम 31 cities, 12 states and 8 countries. Let me see if this video starts. So these are the list of few students that we have. And we are award winner also for since 5 years. So institute is there since 5 years, and we have been consistently winning the award. Every year we are winning the award, and even for 2020 also we won the latest award in month of Jan. So that was our 5th award. So again I'm just repeating, 10 theory session fees is only 5,500. अगर आपको अच्छा नहीं लगता है theory session लेने के बाद definitely आप रिमेनिंग अमाउंट नहीं पे करेंगे और यू कैन स्किप। और अगर आप इनरोल करते हैं वेल एंड गुड। तो अगेन दिस इज द डिटेल ऑफ द स्लाइड, यू कैन टेक अ फोटो। और उसके बाद बी इन अ राइट मार्केट एट राइट टाइम, बिकॉज ये मार्केट इतना ज्यादा अभी आपके फेवर में जाने वाला है लॉकडाउन के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ मैरिजेस का भी अगर बात करें तो डेफिनेटली इट विल शूट अप। सो विच टॉपिक यू वांट to take next, you can type here. Now I have a request, so everyone, can I make a request? Please type in yes if I can make a request. Too lengthy session, I forgot to ask you yes or no. Please type in yes if I can make a request. Okay, तो what you can do कि आप एक तो नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और वहां पर क्या है, हैशटैग आस्क एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर मोनिश, जहां पर हमारे पास मेकअप के बहुत वीडियो हैं, सवाल जवाब हैं, काफी सारे लोगों को सवाल होता है, और कुछ एप्रीहेंशंस होती हैं कोर्स को लेकर, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और आपको इसमें ये भी समझ में आएगा कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं मार्केटिंग को लेकर, और वही कंसिस्टेंसी जो हम कर रहे हैं वही चीज हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप हमारे किसी भी चैनल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी इज देयर, और वही कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है, और द वे इट हैज टू बी डन दैट वे ओनली। तो कंसिस्टेंसी इज द की, बिकॉज लोग आपको देखते हैं, बार बार देखते हैं, और बार बार रिपीटेशन में आपके पास आते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमारा जो चैनल है नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट,
इसमें हमने एक महीने में हमें 1000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं, जबकि लॉकडाउन है और हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लॉकडाउन के टाइम में हमें इतने ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो इन अ मंथ 1000 सब्सक्राइबर्स, यानी कि हम 5000 से अभी ऑलमोस्ट 6200 तक पहुंच गए हैं। तो ये लॉकडाउन के टाइम में मिलना इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। क्यों? क्योंकि लोग शायद काफी ज्यादा चैनल देख रहे हैं, ऑनलाइन पे प्रेजेंस भी ज्यादा है, इसके अलावा हमारी मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी अवेलेबल है। तो ये सब चीजें एक एक चीज मायने रखती है, और आप भी इन वीडियोस को देखें तो आपको समझेगा कि लाइफ में किस तरीके से कौन सा करियर आपको राइट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। And tomorrow is Sunday, so tomorrow there will not be any webinar, and we will be taking directly on Monday, जहां पर हम बात करेंगे स्पा के बारे में and how to earn 10 lakh using spa. So it will happen on Monday. So if you are interested in spa, or if you want to attend or you want to understand कि और दूसरा strategy क्या हो सकता है, तो वो भी आप सीख सकते हैं इस सेशन में ज्वाइन करके, कि वहां पे आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, मेकअप के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए, स्पा के लिए। तो इफ यू वांट टू लर्न मोर स्ट्रेटेजीज इन मार्केटिंग एंड सेल्स, दैट यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। एंड इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन स्पा, देन यू मस्ट अटेंड दिस session. So thank you everyone. Thank you action takers. And if there is any question, please type yes. And if there are no question, it is absolutely fine. Please type no so that I know that I should exit. Thank you everyone. Please type in yes or no. Thank you. Thank you everyone. Thank you action takers. So I'm closing the session. Thank you.